So students, this is your lesson number 18, body fluids and circulation, and today we are going to learn about the cardiac cycle. We are going to learn what are the steps that follow while the blood is circulating in the heart. Okay, and there are different steps. The whole blood circulation in the from the heart towards the body and from the body towards the heart, that whole makes the cardiac cycle. Okay, and in the previous classes we have learned about the different structures which are present in the heart, which help in this easy flow of blood from one place to another. Okay, so I think at the end of the yesterday's class we have learnt about the diagram of heart. Okay, heart का diagram पढ़ा था, and there we have done with all the descriptions of the heart. This diagram is only just to show the steps which are involved in the cardiac cycle. Cardiac cycle में जो steps involved हैं, just उसको show करने के लिए ये एक rough sketch है. Okay, ये थोड़ा सा और टेपरिंग हो जाएगा यहाँ से. Okay, so right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. Okay, and this is intraventricular septum. Okay, now सबसे पहले कार्डियक साइकिल में क्या है आपको ये याद रखना है, जैसे हमने कल पढ़ा था, ये भी 5th को यहाँ से हटा देती हूँ. First you should know that this heart is the pumping organ and it pumps the blood to various parts of the body. Okay, and for pumping it needs the origination of an electrical impulse. So as we have discussed in our previous class, the SA node, ठीक है, जो आपका SA node है, ठीक है, एक है आपका AV node और एक है आपका SA node. ठीक है, SA node कहाँ पे आपका प्रेजेंट है? जस्ट सी इन द डायग्राम, सबसे ऊपर, और उसके नीचे है आपका AV node. ठीक है, तो जो SA नोड है वहां से सबसे पहले क्या ओरिजिनेट होगा? SA नोड, सिंस इट इज आल्सो नोन एज द पेसमेकर, सो for the cardiac cycle to take place, the origination of electrical impulse will take place from the SA node. ठीक है, SA node से ही क्या होगा? SA node से क्या arise होगी? The electrical impulse. Why the electrical impulse will start from SA node? Because it is what? It is self excitable. वो अपने आप excite हो सकता है, means it has the contraction and relaxation. Or if we measure the activity of SA node, we can easily measure on a piece of graph paper. So you will get like this. ठीक है, आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. तो ये क्या, ये दिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट अ वेव. ठीक है, तो वेव में आपको पता है कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं, पीक भी जाएगी फिर लो डाउन हो जाएगा. तो दिस इज व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीजिंग एंड अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. सो our heart undergoes two types of basically broadly it undergoes contraction. उसमें क्या क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरा फेज क्या होता है? रिलैक्सेशन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर कॉन्ट्रैक्शन? कल हमने पढ़ा था. यस, व्हाट शुड आई राइट हियर? इट इज, व्हाट शुड आई राइट हियर? इट इज कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या बोला था? डायस्टोल और सिस्टोल? इट विल बी सिस्टोल. डायस्टोल. ठीक है, ओके. सो सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल. ओके, अभी जो सिस्टोल और डायस्टोल है ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में होता है, एक रिदम होता है. And for this rhythm to take place, a wave should be generated. The wave is generated in the form of electrical impulse, and for this electrical impulse, this SA node or the sinoaurical node is responsible. So when the wave originates from this, the wave passes from SA node, the wave passes to AV node,
यहाँ पे पहले एसए नोड से थोड़ा सा एवी नोड थोड़ा सा नीचे होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो एसए नोड से कहाँ पे इम्पल्स ट्रेवल होगा? एवी नोड के पास। एवी नोड से इम्पल्स कहाँ पे ट्रेवल होगा? टुवर्ड्स, यस, टुवर्ड्स द पुरकिंजी फाइबर, एंड पुरकिंजी फाइबर्स के बाद बंडल ऑफ हिस। ये आया समझ में? ऐसे नोड से एवी नोड से पुरकिंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हिस, ये समझ में आया किसी के? देखो यहाँ पे Yes. ये ऐसे नोड समवॉट यहाँ पे है, और एवी नोड जैसे हम ऐसे नोड को ये बताते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ओरिजिनेट हो रही है, थोड़ा सा टिल्ट होके इस तरफ आएगी, यहाँ पे एवी नोड है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो है आपका एवी नोड के आगे जाके ब्रांचेस में हो जाता है, कुछ यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करने के लिए नर्व निकल रही है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या जाते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, तो एवी नोड से जो नर्व इंपल्स है वो पुरकिंजी फाइबर्स के पास आ जाएगी। पुरकिंजी फाइबर्स आगे जाके लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं टू सप्लाई द होल, टू टेक और टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू द होल ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ पे और इस तरफ पे जो नर्व है उसकी ब्रांचेस चली जाएंगी टू टेक द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, टू कैरी द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है ना, so SA node, then AV node, then Purkinje fiber, then bundle of it, and the electrical impulse will be distributed into the whole heart. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो हार्ट है on the upper side means this heart is present in the chest cavity, so it is just near lung. ठीक है, तो लंग से जो भी ब्लड आ रहा है, लंग से एक्चुअली ब्लड नहीं आ रहा, लंग से आ रहा है ऑक्सीजन। ओके, so when the oxygen is mixed with the blood, then it becomes oxygenated. So oxygenated blood will enter where? Oxygenated blood will enter the left auricle by the means of pulmonary vein. ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, अच्छा एक और चीज, सिमिलरली जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आके मिक्स हो रहा है, इट एंटर्स द लेफ्ट ऑरिकल in the heart. Simultaneously another activity is also taking, some deoxygenated blood also comes to the heart by means of the vena cava. लोअर वाली को मैंने आपको बताया था इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाली को मैंने बताया था सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सो हार्ट रिसीव्स द ब्लड एट द सेम टाइम। हार्ट में जो ब्लड की रिसीविंग है वो सेम टाइम पे होती है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना कावा के हेल्प से राइट ऑरिकल में, ऊपर और नीचे से। ठीक है, तो मतलब राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल बोथ विल हैव ब्लड, बोथ विल रिसीव ब्लड। लेकिन आप ये बताओ कि अगर हमारे पास 30 डेस्क हैं एक ही क्लास में, ओके, एंड 30 डेस्क में if two students sits at one bench or desk, how many this desks are required? हमारे पास 30 डेस्क है, how many students can be accommodated? 60। ठीक है ना, एक बेंच पे दो बैठ गए, लेकिन अगर 20 और आ गए तो क्या हम उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी शुड हैव सर्टेन अरेंजमेंट फॉर एक्यूमुलेटिंग मोर सब्सटेंसेस। सिमिलरली the oxygenated and deoxygenated blood will only enter the heart when the heart has certain arrangement for that। ठीक है, और उस अरेंजमेंट के लिए पहले हार्ट की जो वॉल्यूम है, वहां पे जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ताकि हाई प्रेशर से ब्लड अंदर आए। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले कार्डियक साइकिल जब ऐसे नोड से ओरिजिनेट होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एट दैट टाइम द हार्ट इज इन द रिलैक्स्ड पोजीशन। ठीक है, हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में है, और रिलैक्स पोजीशन को मैंने आपको क्या बताया? डायस्टोल। ठीक है ना, ओके, सो डायस्टोल में मतलब पूरा हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड फेज में है, so that is considered as the joint diastole। ठीक है, so joint diastole होगा, then only both the oxygenated as well as the deoxygenated blood can easily, because the heart in the diastole phase the pressure is also low and the space is there, space is high, means more space is there, so that the blood can be
accommodated, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब अब हम वेल्व को देखते हैं, कौन कौन से वेल्व यहाँ पे क्लोज होंगे और कौन से ओपन होंगे, ये आपको खुद बताना है। यहाँ पे मैंने, चलो एक तो मैंने लिख ही दिया, बायो ट्राइकस्पिड वेल्व आपके क्या है, यहाँ पे ओपन है, लेकिन ये एकदम से नहीं ओपन होंगे। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व थोड़ी सी लेट में ओपन होंगे, या तो मैं इसको आप वहां पे लिख लेना, वो सही है, बट आपको बता रही हूँ कि कब ओपन होंगे। सबसे पहला जॉइंट डायस्टोल है, मतलब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे है। रिलैक्स पोजीशन पे है, इसका मतलब कि सारे वेल्व इनिशियली क्या हैं, अंदर के जो वेल्व्स हैं वो सारे क्लोज्ड हैं। तो इनिशियली जो आपका ये है आपके बाई और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो क्या है, वो क्लोज है, ठीक है। वो ओपन भी यहाँ पे इसी पॉइंट में ही ओपन है होगा, सबसे पहले वो क्लोज है, ठीक है। जब यहाँ पे ये दोनों के दोनों वेल्व क्लोज हैं तभी तो ब्लड वहां से यहाँ पे आएगा। अगर ये शुरू में ही ओपन हो जाएंगे तो ब्लड वहां से आने के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में जब पूरा हार्ट एक रिलैक्स पोजीशन में है उस टाइम पे these valves are closed, okay, and what happens, the blood rushes inside it, okay. Now the electrical impulse from SA node transfers to AV node. तो SA node से जब AV node में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर हो जाएगी तो अब क्या होगा, ये जो इट विल कॉज द बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व टू ओपन, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों ही वेल्व क्या हो जाएंगे, ओपन, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे ओपन लिखा था क्योंकि ये क्लोज वाली कंडीशन लास्ट वाले पॉइंट की थी, ठीक है ना। बट हर एक मार्जिन होती है ना, जहां पे एक लास्ट वाला पॉइंट एंड हो रहा है वहीं पे फर्स्ट वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल the bi and tricuspid valves are closed, but as it gets started, they will as it receives the blood is filled in the atria, the bi and tricuspid valve will open so that they will now push the blood to the respective ventricles, ठीक है। तो आपके बाय ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे और आपका जो ब्लड है वो इन दोनों से प्रेशराइज होके कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ पे आगे पुश हो जाएगा, इन द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. So right auricle will push the blood to right ventricle by means of tricuspid valve, and the left auricle will push the blood to the left ventricle by means of bicuspid valve. Okay, अब यहाँ पे अब ये बताओ कि जब ये यहाँ से ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पे सेमीलूनार वाल्व कैसे रहेंगे, ओपन की क्लोज? Yes, full semi when these are open, when the bi and tricuspid valve are open, then at that time what will be the position of semilunar valve? Semilunar valve की पोजीशन उस समय क्या होगी? Closed. तो क्या होगा? Closed. It will be closed. अगर वो क्लोज नहीं होगा तो जो ब्लड आगे फ्लो कर जाएगा ना। अभी हमें ये क्या जो दरवाजे हैं ये फ्लैप से, ये धीरे धीरे एक ओपन हुआ तो दूसरा क्लोज होगा, फिर एक ओपन होगा तो दूसरा, जब दूसरा क्लोज होगा तो तीसरा वाला ओपन होगा, इस तरह से करके होंगे। ये ओपन है तो इसका मतलब कि यहाँ वाले जो आपके वेल्व्स हैं, इधर वाले ये जो सेमील्यूनार हैं, दिस विल बी क्लोज सो दैट ब्लड डोंट गो इन दैट। जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में ना चले जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आपके सेमीलूनार वेल्व क्या है वो क्लोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हमने लिखा बाय एंड ट्राइकस्पिड वेल्व विल ओपन, ओके, बाय द एंड ऑफ द जॉइंट डायस्टोल, एंड व्हेन दे ओपन दे पुश द ब्लड फ्रॉम, ब्लड कहाँ आ जाएगा, ऑरिकल्स से कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स, एंड एट द सेम टाइम द सेमील्यूनार वेल्व जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो होंगे क्लोज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज नोन एज द एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल, अब हम ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट डायस्टोल का एंड है वो एट्रियल सिस्टोल का स्टार्टिंग है, ठीक है, बिकॉज अगेन ऑल द प्रोसेस आर लिंक्ड, ठीक है। एक बार डायस्टोल से क्या हुआ कि जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया रिलैक्स हो गए थे, ब्लड अंदर आ गया, अब ब्लड को यहाँ से यहाँ पुश करना है तो एंड पे क्या हो जाएगा, एंड पे
आपका बाय ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे आ जाएगा और आपका सेमील्यूनर वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, वो क्लोज है, ठीक है। तो डायस्टोल, यहाँ पे डायस्टोल था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ओके, इधर पे पहले डायस्टोल था, ब्लड आ गया, इसने जब ब्लड को यहाँ पे पुश कर दिया तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या रह गया, वहां पे कौन सी स्टेज, वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तभी तो आगे वेंट्रिकल्स के आगे ब्लड जाएगा ना। तो ऑरिकल्स हैव टू पंप द ब्लड so that it will go to the ventricles. So for this they have to increase the pressure. प्रेशर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, ठीक है। तो पहले जॉइंट डायस्टोल था जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, फिर आएगा आपका एट्रियल सिस्टोल जिसमें आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके सेमील्यूनर वेल्व क्लोज हो जाएंगे और आपके बाय और ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगे। एंड जो आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एस से नोड से, सॉरी एस मैंने उल्टा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एस से आएगा, यहाँ पे ए बी आएगा, ये एस से है और ये ए बी है, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल तो ऑलरेडी जनरेटेड है जब ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड the action potential or the electrical potential will pass to bundle of His, HIS, ओके, कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं, HIS, ठीक है। चौक जो है फिसल रही है थोड़ी, ये भी ऐसे ही, ओके। सो यहाँ पे एट्रिया जो है दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए सिस्टोल, ब्लड को आगे पुश कर देंगे। नाउ द वेंट्रिकल्स विल रिसीव द ब्लड। नाउ द थर्ड वन, ओके, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल्स हैव गेन द ब्लड, ओके। नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द ब्लड इज पंप इन द फर्दर डायरेक्शन में। अब वेल्व की पोजीशन आप मुझे बताओगे कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, सिस्टोल मतलब समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर जाएंगे, दे विल एंटर द फेज ऑफ सिस्टोल, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बाय ट्राई एंड सेमील्यूनर वेल्व। यहाँ पे जाके वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जाके बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेल्व और सेमील्यूनर वेल्व की पोजीशन क्या होगी, ओपन या क्लोज, ये मुझे आपको बताना है। Ma'am, closed. Bicuspid valves are closed and semilunar valves are open. Wait. You have said that bi and tricuspid valves close. Okay, they will close. So what is the significance behind this? Why they will close? Blood open flow नहीं होना चाहिए. Because the blood has to flow in the forward direction. Okay, so that the blood do not flows backward. Blood जो है वो backward flow नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो तो ये दरवाजे बंद तो करने पड़ेंगे ना, इसीलिए आपका जो बाय और ट्राइकस्पिड वेल्व है ये क्या हो जाएंगे, जो ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द सेमील्यूनर वेल्व, यहाँ पे आगे सेमील्यूनर वेल्व की क्या पोजीशन रहेगी, ओपन, यस। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस, सेमील्यूनर वेल्व क्यों ओपन होंगे, सेमील्यूनर वेल्व क्यों ओपन होंगे, to let forward direction flow होगा, yes, to flow in the forward direction, ठीक है। so for that gates have to be open, तो यहाँ पे जाके ये दोनों के दोनों गेट्स जो हैं वो खुल जाएंगे, they will be opening, okay. So this particular place and these valves will open so that the blood flows in the respective blood vessels, okay. Right auricle से blood किस में जाएगा, in the pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी के मैंने ब्रांचेस करी है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज दिस राइट लंग एंड दिस विल गो एंड जॉइन द लेफ्ट लंग टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्बन डाइऑक्साइड देयर, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ब्लड जो है वो इजीली वहां पे कहाँ पे चला जाएगा, टू द लंग देयर विद द हेल्प ऑफ ब्लड लंग्स के पास ही जाएगा, yes, it will go to the lungs, but lungs के अंदर नहीं जाएगा, lungs के अंदर क्या जाएगा, only the O2, only the CO2,
which has come from the heart. Okay, deoxygenated, क्योंकि ये right ventricle ने deoxygenate blood को pump किया है by means of this pulmonary artery. So the deoxygenated blood will move towards the lungs, and there at the junction of lungs, what is present? At the junction of blood vessel and the lungs, what is present? The alveoli is present. So the alveoli will take the maximum amount of CO2 so that the CO2 can be expelled out. जो CO2 है वो बाहर निकल जाए, तो वहां से CO2 बाहर निकल जाएगा by means of expiration. ठीक है ना. अब इसका क्या हुआ, यहाँ से भी ये सेमिलुनर वेल्व ओपन हो गया है. सो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे. जैसे राइट ऑरिकल और राइट और लेफ्ट ऑरिकल दोनों ही ब्लड एक साथ रिसीव करेंगे, उसी तरह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड एक साथ रिसीव करेंगे, और ये दोनों ब्लड इकट्ठे पंप भी करेंगे. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी सिस्टोल और डायस्टोल होता है, इन दोनों का डायस्टोल इकट्ठे होगा, इन दोनों का भी डायस्टोल और सिस्टोल इकट्ठे होगा. ठीक है ना. ओके, ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड सिस्टोल जा रहा हो लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा नहीं होगा. ओके, तो ये हाफ ऑफ पार्ट में होगा. ऊपर वाला पार्ट अगर रिलैक्स है तो नीचे वाला में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर नीचे वाला रिलैक्स है तो ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जॉइंट डायस्टोल में तो सारा का सारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन होता है. ठीक है. सो नाउ द oxygenated blood will move from the left ventricle towards the largest artery, and largest artery which is your aorta, and aorta will distribute. ये बहुत मोटी blood vessel होती है यहाँ पे, and this will act as the pumping artery also. Okay, and it has many branches. ऊपर जाके इसकी बहुत branches, सब branches हो जाती हैं, which provide blood to the tissues and to the cell. ठीक है. So there the process of oxidation of food will take place, and CO2 बनेगा, energy release होगी, energy will be stored in mitochondria, और energy जो है वो ETS के थ्रू हमें energy मिलेगी और ATP बनेगा. ठीक है. and CO2 जो बनी है सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, that will come out, it will diffuse in the blood vessel by the means of certain capillaries. Okay, and capillary will join to form vein, and vein will form the great veins, which is the superior and inferior vena cava, and inferior and superior vena cava will collect the blood towards and distribute to the right auricle. तो मेन तो ये आपके पॉइंट्स ये 3 हैं. ठीक है, फिर से याद करवा रही है. जॉइंट डायस्टोल, जिसमें पूरा हार्ट क्या होगा, यही के यही याद कर लिया करो. पूरा हार्ट कैसा है, रिलैक्स्ड है. It is now ready to take the oxygenated and the deoxygenated blood. ठीक है. इसके जॉइंट डायस्टोल के एंड तक क्या हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और जो मैसेजेस हैं वो आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होंगे. ठीक है, और ये दोनों जो हैं आपके वेल्व खुल जाएंगे, यहाँ पे ब्लड आ जाएगा. ब्लड आने के पहले इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, इसीलिए एट्रियल सिस्टोल. ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होने के एंड तक क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे ब्लड आ गया, नाउ इट हैज टू बी पंप्ड फर्दर, तो उसके लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. सो दिस इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, आपका सिस्टोल है, सो इट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकल्स आपके सिस्टोल पोजीशन में चले जाएंगे दोनों, एंड दे विल पुश द ब्लड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना. ओके, so these 3 cycles will in the step wise manner. ठीक है, ये जो है सारे साइकिल्स 1 2 3, फिर अगेन फिर 1 2 3, इस तरह से करके ये सारे साइकिल्स जो हैं वो रिपीट होंगे टू फॉर्म द एंटायर कार्डियक साइकिल. राइट. ओके, so there is one line I am going to read it. Just see, as the pressure inside the ventricle decreases, the bicuspid and the tricuspid valve open to repeat the process of cardiac cycle. ठीक है, इन तीनों के एंड के बाद दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ. as the pressure inside the ventricle decreases, the bicuspid and the tricuspid valve open to repeat the process of cardiac cycle. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब when these ventricles have poured the blood inside the respective arteries and veins, what will happen, the pressure will decrease. यहाँ पे pressure will हो जाएगा, decrease हो जाएगा. So when the pressure will decrease, automatically ये कौन से पोजीशन में चला गया है, रिलैक्स पोजीशन में चला गया है. तो हमारा कौन सा स्टार्ट हो गया, जॉइंट डायस्टोल. तो उसके टाइम पे फिर जो मतलब इतनी जल्दी होता है कि हम एक दूसरे से, these are all related.
Okay, one is connected to next and the next is connected to the third one, but it will go in this manner. ठीक है, तो जब रिलैक्स होंगे तो सब सारे आपके all the four chambers are relaxed. Okay, और अगेन फिर ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे. पहले यहाँ पे ये वाले जो दोनों पोजीशन, जब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में था तो बैक फ्लो को बंद करने के लिए ये दोनों क्लोज हो गए थे. जब यहाँ से ब्लड निकल गया तो ये वापस ओपन हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, और जब ब्लड वैसे ही वापस इसमें आने वाला फिर ये क्लोज हो जाएगा ताकि आते यहाँ ना चले जाए. तो ये बहुत साइमल्टेनियसली होगा एंड इट विल बी वेरी क्विक. ओके, सो लेट अस सी द ब्लड प्रेशर. Yes, you are all aware about the blood pressure. आपको सबको blood pressure का पता है ना कि what is the value of blood pressure. Whenever we go to hospital to check our blood pressure. Yes, ma'am. Doctor 80 and 120. 120 mm per hg. So what is this 80 and 120? ये जो 80 और 120 ये है क्या? Amount of Hg. मैम Hg का अमाउंट इन mm. Hg का अमाउंट क्या? Hg का अमाउंट क्या? mm of Hg है ना. ओके, तो जो हम जो ब्लड प्रेशर होता है वो अराउंड होता है 120/80 mm of Hg. ये mm of Hg बिकॉज मर्करी जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, दैट यूजेस एक्चुअली अ मर्करी. वो क्या यूज करता है, वो मर्करी को यूज करता है. ठीक है ना. तो उसमें मर्करी आपने देखा होगा कि सम रबर बैंड होता है, मतलब अ थिक रबर बैंड स्ट्रेच. ओके, सो दैट इज नॉर्मली इट इज टाइड हियर एंड there is another balloon type rubber structure. Okay, so when that is pumped, उसको जब पंप किया जाता है तो जो आपने देखा होगा there is a tube, एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें जो आपका मर्करी है इट राइजेस. ठीक है, तो उससे क्या है, वो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन पे देखते हैं कि वो कहाँ तक मर्करी राइज होता है, लोएस्ट उस पे देखते हैं कि कहाँ तक मर्करी फॉल करता है. मतलब हाईएस्ट रीच करने को तो जस्ट छोड़ देते हैं तो वो कहाँ तक नीचे आता है. ओके, तो हाईएस्ट जो जाता है दैट विल बी 120 एंड जो लोएस्ट जाता है दैट विल बी 80. अब अगेन यहाँ पे डायस्टोल एंड सिस्टोल की आ जाएगी. ये 80 और 120. ओके, सो ये हाई और लो का है. लोएस्ट ब्लड, ये नॉर्मल, एक व्हेन द ह्यूमन बीइंग इज इन द नॉर्मल कंडीशन, तो जो लोएस्ट जो इसमें लोएस्ट ब्लड प्रेशर जाएगा दैट विल बी 80. ठीक है, नॉर्मल में. अगर 80 से नीचे आ रहा है, if less than 80, if the BP falls below 80, ठीक है, then हम उसको क्या कहेंगे, the BP is low, the blood pressure is low. ठीक है, तो ये लोअर लिमिट है. 80 से नीचे जाने पे हम कहेंगे कि BP जो है वो लोअर साइड पे चला गया. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का तो यही होता है. 120 इज द, इफ इट गोज बियॉन्ड 120, अगर वो 120 से ज्यादा जाने लग जाता है, ओके, 120 से बियॉन्ड, जैसे कि 130 हो गया, तो ऑटोमेटिकली दिस इज ग्रेटर देन 120. ओके, तो इस पे हम टाइम पे कहते हैं कि जो बीपी है वो हमारा क्या हो रहा है, इट इज राइजिंग अबव. तो हाई बीपी मीन्स हाइपरटेंशन. ठीक है, when the atria and the veins they are contracting, जब वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ओके, देन दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. ओके, और बहुत जल्दी जल्दी हार्ट बीट हो रही है, so that time the blood pressure goes to a very high limit and 120 से वो आगे 130, 140, 150, 160 पे भी चला जाता है. ठीक है, तो 120 या 130 भी नॉर्मल हम मान लेते हैं, लेकिन 130 के बियॉन्ड भी अगर जाता है तो दैट वी कंसीडर एज अ हाई ब्लड प्रेशर. उसी तरह से वैल्यू है कि so beyond means less than 80 means the person will have a very less BP. अगर ब्लड का फ्लो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा तो उससे क्या होगा, the body organs will not receive oxygen in a proper amount. ठीक है, so when they will not receive oxygen in a proper amount,
so the oxygen will not reach each and every cell, and in that case the human being can become faint. ठीक है, उसको चक्कर आ सकता है, वो गिर सकता है, और उस समय जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि ब्लड इज ऑटोमेटिकली कैरिंग ऑक्सीजन ऑल्सो, इट इज कैरिंग ग्लूकोज ऑल्सो टू द सेल्स. ठीक है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी नीचे चला जाएगा और बीपी भी डाउन हो जाएगा. तो जिसको लो बीपी है उसको वहां पे ग्लूकोज दे दिया जाता है. ठीक है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा ठीक हो जाता है. और हायर बीपी मतलब जैसे हायर अमाउंट ऑफ शुगर भी हाई बीपी वालों को नहीं लेना, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी नहीं लेनी है, बिकॉज दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज और दे कैन disbalance the osmotic pressure of the body fluid. ठीक है ना, तो ये 120 and 120 and 80 is the value of blood pressure which is measured in terms of mm of Hg to show the blood pressure of a normal human being or a patient. ठीक है, अगर इससे डेविएट होती है कोई भी वैल्यू तो हम उसको क्या कहते हैं, द पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम. उसको या तो लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, सो आई थिंक नाउ द कार्डियक साइकिल इज फिनिश्ड. वी आर लेफ्ट विद, चलो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेती हूँ, डबल सर्कुलेशन. वो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, बट छोटा टॉपिक है तो मैं कर लेती हूँ, सो दैट लास्ट में वी विल बी लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, जिसमें एक आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ जाता है एंड सम डिजीजेस. तो डबल सर्कुलेशन में यहीं पे बता देती हूँ. इट इज वेरी इजी ऑल्सो एंड यू हैव रेड इन क्लास 10th में आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा ली है. ठीक है ना, ओके. You all know that mammals have a double circulation of blood and lower group of organisms जैसे fishes हुआ, amphibians है, वहाँ पे जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स या मैमल्स या एप्स और मैमल्स में दोनों में 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन फिशेस जहाँ पे 2 ही चेम्बर है, एम्फीबियन जहाँ पे 3 चेम्बर है. तो वहां पे क्या होता है, देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. So whenever there is mixing of oxygenated and deoxygenated blood, then it decreases the efficiency to do work. Okay, efficiency to do work. और जो एक work output होता है वो लो चले जाता है when mixing of oxygenated and deoxygenated blood. तो ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, इन द फिशेस. ठीक है, और एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में भी. ठीक है, क्रोकोडाइल को हम छोड़ देंगे क्योंकि क्रोकोडाइल दे हैव 4 चेम्बर्स. तो क्रोकोडाइल, एप्स एंड मैमल्स, इन सब में क्या होगा, इन सब में सिंस वी हैव 4 चेम्बर्स तो डबल सर्कुलेशन इज देयर. इन सब में डबल सर्कुलेशन है. And because of double circulation, there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood का mixing क्या होती है, नहीं होती है. And because of this, the efficiency to do work will increase. ठीक है, so जो workout है that increases. Okay, तो अब मैं जस्ट ऐसे ही बता दे रही हूँ, जैसे ये मैंने रफली ट्रायंगुलर हार्ट को टिल्ट करके बना लिया, ये आपके 4 चेम्बर्स होंगे. ठीक है ना, तो इन अ सिंगल सर्कुलेशन, व्हाई डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं. ओके, सो यहाँ से एक इनपुट इधर पे था, यहाँ एक इनपुट है, इधर पे एक इनपुट है. ठीक है, और यहाँ से एक आउटपुट है एंड इधर पे भी एक आउटपुट है. ठीक है, ओके. तो ये समझ में आया, छोटा सा बास्केट लाइक स्ट्रक्चर. Yes, ma'am. Okay, so this one is the right side and this one is the left side. यहाँ पे आपका कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, एंड हियर इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये आपकी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम हो गई, दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल. ठीक है, ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है. दिस इज योर वेना कावा, और ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड ये हो गया आपका आयोटा. ठीक है ना, अब क्या होता है, इन अ सिंगल सर्कुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल सर्कुलेशन.
So in a single circulation, the blood flows twice through the human heart. एक पूरे सर्कल में ब्लड जो है वो ट्वाइस किसके थ्रू पास होता है, हार्ट के। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो लेट अस सी, अब इस तरफ पे है आपके लंग्स, ओके। तो यहाँ वाला ये था ना, ये लंग्स में जा रहा है और इसी की एक ब्रांच लंग्स की तरफ जा रही थी, ठीक है ना, ओके। और जो आयोटा है वो नीचे आ गया है, आयोटा आर्टरीज में ब्रांच होके नीचे आ गया है, और यहाँ पे आपके बॉडी सेल्स पे, और यहाँ से जो CO2 ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये वाला, एंड दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है आपका सेल और टिश्यू, ठीक है। So actually we have two types of circular. One is known as the systemic circulation, and another one is known as pulmonary circulation. A combination of these two circulation in a human being is known as the double circulation. ठीक है? Pulmonary circulation refers to the circulation where the oxygenated blood, the blood after getting oxygenated from the lungs, enter the atria. ठीक है? And the deoxygenated blood from the ventricles goes to the lungs. मतलब लंग्स की तरफ से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड और लंग्स की तरफ जाने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस सर्कुलेशन इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड वहां आएगा जहां पे आपके लंग्स हैं, ठीक है। तो लंग्स, ये पूरा जो हुआ हार्ट के ऊपर का जो सर्कुलेशन है विच इज रिलेटेड टू द लंग, दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब एट्रिया जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सॉरी आयोटा जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई एट्रिया में, सेल्स को सप्लाई किया, सेल से CO2 निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया वेना कावा में। ये जो नीचे का है हमारी पूरी बॉडी का ट्रांसफर ऑफ ब्लड इन द रेस्पेक्टिव आर्टरीज एंड रेस्पेक्टिव वेन्स, दिस एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर हम एक सिंगल सर्कुलेशन देखें, तो अब हम सिंगल सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं आपके लेफ्ट लंग से, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ से इधर पंप होके आर्टरीज के थ्रू इधर पे गया, वापस आया वेना कावा के थ्रू से आपके राइट साइड ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया लंग्स। मींस इफ द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, इफ वी हैव रीच्ड देयर, देन दैट इज वन साइकिल। अगर मैं बोलूं कि एक साइकिल मुझे करना, तो ये पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट होके वापस इस पॉइंट पे बोलूंगी, तभी तो ये वन साइकिल है ना। So in this cycle, this whole cycle, blood heart में कितनी बार गया? Twice. Okay. Therefore, this type of circulation is known as double circulation. So students, so today we have discussed about two topics. One is the cardiac cycle and another one is the double circulation. And now we are left with two more topics. One is the diseases which are related to heart, and there's a technique to measure the rhythmic contraction and relaxation of your heart. So that is done by electrocardiograph and electrocardiogram, that we'll learn in our next class. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.